Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 10th, you guys are quite aware about the variety that we are dealing with the chapter current electricity. Yes, beta, we are dealing with the current electricity chapter, and in the last video lectures, we were dealing with the topic resistance and resistivity. Our last topic was about the resistivity. Yes, and resistivity में आपने ये जाना है कि this resistivity is actually the resistance offered by the conductor when its length and area is kept restricted. That means अगर हम लेंथ और एरिया को यूनिटी रखेंगे उस टाइम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाती है एंड उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. And also we dealt with the factors affecting resistance. Yes, first factor was the length. We elaborated that. We thoroughly studied about the length of the conductor. Number second was about the area of the cross section of the conductor. That also we dealt with very much. So we have been a part of the factors affecting resistance of the conductor. And in the third factor, we have discussed about the effect of temperature on the resistance. That means what was the effect of temperature? It's also the third factor. That was the temperature. Regarding the increase or decrease in the temperature, what will be the effect of temperature on the resistance? Today our topic will be that we have to read out the concept of effect of temperature on resistance and resistivity. Okay, effect of temperature on resistance and resistivity. अगर आपको याद होगा, if we dealt with the when we dealt with the factors affecting resistance, उस टाइम मैंने आपको कहा it's a very important concept that we are going to study later. We are going to deal with this topic, effect of the temperature on resistance and resistivity, later after studying the concept of resistivity. Because resistance and resistivity जो है, if effect of temperature on resistivity and resistance वो सेम पड़ता है. जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, सेम विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन रेजिस्टिविटी. So our topic will be effect of temperature on resistance and resistivity. I'm going to write this. Yes, so let's start the topic here. Effect of temperature on resistance or resistivity. This is going to be the topic for today, and very important topic. बेटा ये जो टॉपिक है, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है. वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी, दे हैव टोल्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, सर ये हमें पढ़ाइए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. As you're well aware about the fact that resistance जो है is simply the opposition offered by the conductor. It's an intrinsic property offered by the conductor to the flow of electric charge, to the flow of this electric current whatsoever. ओके, एंड रेजिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो भी हमने निकाली है, उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे. वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस. व्हाट वाज दैट? आर वाज फाउंड आउट टू बी इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. This is the formula for resistance, and you're well aware about the terms involved in the resistance. What is the rho? Rho is the specific resistance, that is called as resistivity. L is the length of the conductor, okay, and A is the area of the conductor. Okay बेटा, but ये जो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, इसको हम इस वाली फॉर्मूला के साथ नहीं पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज टू बी जस्ट एग्जाम्प्टेड. ओके, ये वाली जो टर्म है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, गोबर ये शुन एस्पारिंग याद थे जो ये फॉर्मूला ये वाली यूज़ नहीं करनी है. अब रेजिस्टेंस की एक और फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस की एक और फॉर्मूला है, वो हम हायर स्टडीज़ हायर क्लासेस में पढ़ते हैं. क्लास 12th में आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर होगा, जो आप इंशाअल्लाह 12th में पढ़ोगे. उस टाइम आप देख लोगे कि रेजिस्टेंस की एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर. ओके, या उनको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं. एंड उसकी फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको जस्ट रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग फॉर दिस. आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट अंडरस्टैंड करना है हमने ये. भाई ये टेम्परेचर जो है
टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगर आपको फैक्टर याद होगा रेजिस्टिविटी का फैक्टर, जब हम टेम्परेचर पढ़ते थे, जब हमने टेम्परेचर पढ़ा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सर ये जो टेम्परेचर है इट्स फॉर द मेटल्स, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। सर फॉर मेटल्स के लिए, बट फॉर अलॉयज इसके लिए अलग सी स्टोरी है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से देखे होंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने में। आर यू गेटिंग मी? ओके बेटा, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑन, एज फॉर एज दैट फॉर्मूला इज कंसर्न, वो हम जो हम दैट आई एम गोइंग टू राइट नाउ, उस फॉर्मूला को, उसी फॉर्मूला को हमने क्या करना है, वी हैव टू स्टडी आउट दैट फॉर्मूला, वी हैव टू स्टडी, उसका कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, एंड फॉर दैट, एंड उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अच्छे से और आराम से आपको अंडरस्टैंड होगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज लाइक दिस, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखूंगा, आर इक्वल टू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, टाउ भी बोल सकते हैं, टाउ भी बोल सकते हैं। ओके, ये वाली जो फॉर्मूला है बेटा, इसको आपने जस्ट रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वी आर इन द 10th स्टैंडर्ड, एज फार एज द 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, it's quite enough, this formula to remember is quite enough. Okay, on the basis of this formula we are going to discuss the effect of temperature and resistance, and forget about this formula, but mind this is in your syllabus. Okay, as far as this topic is concerned, forget this formula. Okay, I have introduced a new formula. What is that? R equal to m into L divided by n e square a tau, tau भी बोल सकते हैं। व्हाट इज एम? यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व है इसमें। व्हाट विल बी द एम? एम इज सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron. What is mass of electron? That is 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs. This is mass of electron. Okay, L is the length of the conductor, length of the conductor. Okay, सर कौन सी लेंथ हमने यहाँ पे लेनी है? along which the current flows. Okay, this is very important, along which the current flows. फैक्टर नंबर 5 याद है आपको? The resistance also depends upon the current flow, upon the direction of the current flow. किसके डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसी के डायरेक्शन में हमने लेंथ एज्यूम करनी है, कंसिडर करनी है, जहाँ जिस डायरेक्शन में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस डायरेक्शन से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। एंड नंबर 3, व्हाट इज एन? एन इज गोबरम्यून नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम उनको ये भी कह सकते हैं, एस एन को एस ये भी कह सकते हैं, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र है, नॉट बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दैट इज एन। अब एन, यू आर वेल अवेयर अबाउट ई। व्हाट इज ई? यस, बताइए। दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, this is the charge of electron. What is that? 6.25 Newton is power minus 19 coulombs. Okay, A, area of the cross section, of the conductor. Okay beta, and the last term that is involved in this resistance formula, that is tau. Okay, this tau or यहाँ पे मैं लिखूंगा, this tau is the average relaxation time, RELAXATION, relaxation time. I'll tell you later what is tau, average relaxation time, what is that. Okay, so here are terms that are involved in this resistance term. R equal to m, this is the mass of electron. L, it's the length of the electron along which the electric current flows. And what is n? It's the electron number density.
that means the number of free electrons, the number of free electrons per meter cube, that is the per unit volume. Okay, A, it's the area of the cross section of the conductor, and tau is the average relaxation time. बेटा यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एम एल एन ई स्क्वायर ए. अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट्स टाउ, व्हाट इज दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. ओके बेटा, दिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आपको समझाऊंगा. देखो बेटा, अगर हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे, किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. जब हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं सर, whenever we supply energy to those free electrons, they get excited. When they get excited, suppose this is a free electron, they get excited, and in the excitation state, this free electron will tend to move, and this on its path it will collide to its opposite atom, that is the positive atom, that is the kernel. यहाँ से ये गोबर में ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी दिमो, यह कर कोलाइड यमिस सत कमिस सत, दिस इज द पॉजिटिव कर्नल. ओके, अच्छा अमिस सत गसी कोलाइड कर बे वापस, सपोज यहाँ पे एक और एटम है, दैट इज ए कर्नल, ये इलेक्ट्रॉन गणित यमिस सत कोलाइड कर, उसके बाद ये इसके साथ कोलाइड करेगा, हो करेगा कि नहीं. व्हेन वी सप्लाई एनर्जी टू इट, सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T1 टाइम लगता है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ T2 टाइम लगता है. सो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है यमिस इलेक्ट्रॉन्स कूता टाइम लो फ्रॉम दिस पॉइंट, जब ये कोलाइड करता है इस पॉजिट्रॉन के साथ, कर्नल के साथ या एटम के साथ, आफ्टर दिस कोलिजन ये फिर से इसके पास कोलाइड करके आता है, उसको कितना टाइम लगेगा? दैट मीन्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, that is the average time taken by the electron during the successive average time taken by the electron during the successive collisions. अब कितना एवरेज टाइम रहा? दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. उसी को हम डिनोट करते हैं टॉ के साथ. टॉ इज, अब यहाँ पे एवरेज है, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इन इट्स सक्सेसिव कोलिजन्स. ओके बेटा, सिंपली कितना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को. अब देखो, अगर बह वन छुस एवरेज यूता बह टेम्परेचर इंक्रीज कर, यमिस गई ज्यादा एक्साइटेशन, ये यमिस ज्यादा एक्साइटेशन कर, यह कर जल्दी कोलाइड, अम कोलिजन सत गस यमिस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम. याद थे जो गस ना, बिकॉज यमिस लगे कम टाइम यमिस कोलाइड कर, या पत गस यमिस सत कोलाइड कर, पत गस यमिस सत कोलाइड कर. सो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स वट एवर द एनर्जी इज सप्लाइड टू दिस, the electron will collide more and more. When its thermal velocity will increase, when its energy will increase, so इसके बाद क्या होगा, इसका जो average relaxation time होगा, that is going to decrease. उसका average relaxation time कम होगा. ठीक है बेटा. so number of terms आपको याद understand हुए. this m जो है, this is the mass of electron, L is the length of the conductor, N is the number density, that means of free electrons, number of free electrons per unit volume, E is the charge of electron, A is the area of cross section of the conductor, and T is the tau, that is called as average relaxation time. Okay, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इसका क्या है, व्हाट इज दिस, हमने क्यों पढ़ा है? एक्चुअली बेटा, दिस इज रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे मैं इसी रेजिस्टेंस से मैं क्या करूँगा, आई विल डिराइव द रेजिस्टिविटी फॉर्मूला. याद रखो आप बेटा. ओके, आई विल राइट इट अगेन. यहाँ पे हमारी फॉर्मूला आई थी, वी हैव R इज इक्वल टू ML इंटू NE स्क्वायर A इंटू टॉ. ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला जो होगी, रेजिस्टिविटी में आपको पता है कि लेंथ एंड एरिया हमको रेस्ट्रिक्टेड रखना है. लेंथ और एरिया, दैट मीन्स लेंथ एंड एरिया. अब देखो, रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला जो है, दिस विल बी इक्वल टू M divided by NE square tau. Why?
बिकॉज यहाँ पे जो लेंथ एंड एरिया है उसको हमने रिस्ट्रिक्टेड रखना है। अब जब रेजिस्टेंस ये आई है किसी कंडक्टर में तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? इसकी रेजिस्टिविटी सिंपली जब हम एल और ए को यूनिटी रखेंगे, एल और ए दैट मीन्स 1/1 इज 1, ये दोनों, बिकॉज आपको पता है कि दिस रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, howsoever the dimensions are going to be, the resistivity remains. This does not depend upon the dimensions. Which factor? Resistivity factor. It depends upon the materials. भाई कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो? ओके, दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन दैट मटेरियल। ओके, चाहे हम मेटल की बात करेंगे, चाहे हम सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे, चाहे हम अलॉयज की बात करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम रहेगा, रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी के लिए भी, बट फर्क ये है कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? तो सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी नाउ। अब देखो सर, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज की है, लुक एट दिस फॉर्मूला, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज एम, m is the mass of electron. This is not going to change. Yeah, this will not change at all because mass of electron हमेशा सेम रहेगा हमारा। अब n के ऊपर हम बाद में देखेंगे व्हाट इज n। e, व्हाट इज e? e जो बेटा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। एंड tau, दिस tau इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये वेरी करेगा। दैट मीन्स m और e जो है ये इस फॉर्मूला में कांस्टेंट रहेगा। अब जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम अच्छे से ये वी कैन रिड्यूस दिस स्टेटमेंट दैट ये जो रेजिस्टिविटी है बेटा, इट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n and inversely proportional to tau. Inversely proportional to n and inversely proportional to tau. Have you got this? वेरी गुड, बिकॉज हमारा जो m फैक्टर होगा यहाँ पे, m हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, गोबर में जीरो इज कांस्टेंट, ये ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे चेंज कहीं थे, ये कांस्टेंट शो n शु गसा नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये थोड़ा सा वेरी करेगा, उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब E, दैट मीन्स आउट ऑफ दिस फॉर्मूला M and E आर द टू क्वांटिटीज दैट आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दिस रेजिस्टिविटी मेरा गोबर में, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. What is n? It is the average, what is that? Yes, number density of free electrons, and tau is that average relaxation time. अब दो फैक्टर्स आपको पता है बेटा, यही दोनों फैक्टर्स हैं, what is n and what is tau. This is number density of free electrons and this is average relaxation time. They are the functions of temperature. They are the functions of temperature. Are you getting me? They are the functions of temperature. So resistivity का जो concept यहाँ पे है, that means when we increase the temperature we have to study out the two important terms. What is n? इसके n के ऊपर क्या effect पड़ेगा when we are going to change the temperature, and tau के ऊपर कौन सा effect पड़ेगा when we are going to change the temperature. Same is the case with the resistance. अब देखो एक point आपने यहाँ पे you have to remember one point here. What is that? In order to study out the effect of temperature on resistance or resistivity, we have to keep length and area fixed. Okay बेटा, L and area को हमने fixed रखना है, बेटा। सर जी क्यों रखेंगे? बिकॉज फॉर दिस क्वांटिटी टू रिमेन फिक्स्ड, दैट मीन्स L and R, तभी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ सकते हैं। बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर के वेरी करने से लेंथ भी बढ़ सकती है, बिकॉज लेंथ बढ़ सकती है क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स में एक्साइटेशन ज़्यादा आ सकती है, तो टेम्परेचर का जो मटेरियल हो सकता है वो भी क्या करेगा, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है या कंप्रेस कर, दैट मीन्स चेंज हो सकती है, ऑब्वियसली होगी चेंज। दैट मीन्स यहाँ एरिया भी चेंज हो सकता है। ओके, बट वन थिंग you must keep in mind that we have to keep the factors L and A constant. अब देखो, जब हमने, अब I will talk about the resistance now. M into L is constant, M is also constant, mass of the electron, N number density, E that means charge of electron, this is going to be constant, A हमने fixed रखा। अब tau, that means यहाँ पे भी tau and N, these two terms we have to study out.
effect of that, they both belong are the functions of the temperature. When they are functions of the temperature, that means R जो है, that is also inversely proportional to n and inversely proportional to tau. That means both R and rho, that is the resistance, both resistance and resistivity, they're inversely proportional to n, that is the number density of free electrons, and tau, what is the tau? Average relaxation time. Okay, अगर हमने अगर हमने एक का फैक्टर, दैट मीन्स एक, लेट सपोज एक टर्म यहाँ पे हमने स्टडी की है, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर से क्या होगा, एन से एन कैसे वेरी करेगा, टॉ कैसे वेरी करेगा, जब वेरी करने से एक क्वांटिटी ऐसे वेरी करेगी, सपोज आर इंक्रीज हुआ, जब आर इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर हम एक फैक्टर यूज करेंगे, एक फैक्टर स्टडी करेंगे, उसकी उसकी वजह से दूसरा फैक्टर जो है ऑटोमेटिकली हमको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वाई? बिकॉज दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टॉ. Are you here? Are you watching this? This R is inversely proportional to n and tau. This rho is inversely proportional to n and tau. N and tau. Effect of the temperature. Temperature की vary करने से क्या होगा? I will show you. अब देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि this resistivity जो है, it depends upon the temperature. This depends upon the temperature and depends upon the nature of the materials. अगर आपको फैक्टर्स याद होंगे, फैक्टर्स आपको रिवाइंड करो, फैक्टर्स रिकैप्चुलेट, यू रिकैप्चुलेट द फैक्टर्स, टेम्परेचर के फैक्टर आप ये करो, रिकैप्चुलेट करो. वी हैव सीन दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल्स, दैट मीन्स कंडक्टर्स, दे increase. That means the resistance and temperature are directly proportional to each other. In case of what? In case of metallic conductors. But this story was not same for semiconductors. That means this resistance, this temperature का जो effect है, it depends upon the materials. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? First we will go for metals. We will go for the conductors, pure metals, pure conductors. Number second, we will go for the semiconductors, and number third, we are going to take up alloys. ओके, सो लेकिन हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाली फॉर्मूला. दैट मीन्स आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टॉ. रो विल ऑल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टॉ. सो लेट्स स्टार्ट द first material, that is for metals.